سورہ نور آیت نمبر 40 کو دیکھ، سورہ روم آیت نمبر 40 پاٹ، سورہ آراف آیت نمبر 57، سورہ راز آیت نمبر 17، سورہ فرقان آیت نمبر 40 پاٹ 40 کو 9، سورہ فاطر آیت نمبر 9، سورہ یاسین آیت نمبر 34، سورہ ملک آیت نمبر 30، سورہ زمر آیت نمبر 18، سورہ تاریخ آیت نمبر 11، سورہ مومنون آیت نمبر 21، سورہ تاریخ آیت نمبر 11، سورہ النحل آیت نمبر 65، سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ زخرف آیت نمبر 9-11۔ Quran has described the water cycle in great detail. اس سے پہلے کہ ہم کتاب پر پڑھیں، میں ہمارے مہمان خصوصی کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی کرا دیتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب جو ہے پیشے سے ایک پروفیسر ہیں ایگریکلچرل سائنس میں، اور ایک چیف سائنٹسٹ ہیں جو کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس UAS GKVK بنگلورو میں ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور الحمدللہ یہ ٹمکور جماعت اسلامی کے امیر جماعت بھی ہیں، یعنی امیر مقامی ہیں۔ ہم ناظم ضلع ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا۔ اب انشاءاللہ کتاب کا آغاز ہوگا، قرآن اور ماڈرن سائنس، یعنی قرآن اور جدید سائنس پر ان کا جو ہے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے قرآن مجید اور ماڈرن سائنس۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے، میں کچھ اہم عنوانات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قرآن اور سائنس میں تقریباً 30 سال سے میری محنت رہی، اور اس میں 100 سے زیادہ عنوانات الحمدللہ میرے پاس ہیں، وہ انشاءاللہ وہ کتاب کی شکل میں جلد از جلد شائع ہوں گی۔ تو آج کی اس نشست میں میں یہ کیا 2 عنوانات پر میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ معجزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کفار مکہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 اور 51 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایک معجزہ دکھائیں تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کا جواب سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا کیا ہے؟ تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ دیکھیے دیگر انبیاء کو، رسولوں کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ مومنٹری تھے، وقتیہ تھے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنا چاہوں گا تو آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ معجزات وقتیہ تھے۔ اگر آپ یہ خواہش کریں گے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ آگ کیسے گلے گلزار ہو گئی میں دیکھنا چاہوں گا تو آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ معجزہ وقتیہ تھا۔ مگر قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ جو قیامت کی صبح تک کی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے آپ کو جو قرآن پاک جو نازل کیا ہے اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کفار مکہ کو پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था वो पोएट्री का ज़माना था, शेर व शायरी का ज़माना था। बड़े बड़े शायर उस वक्त के टॉप क्लास के शायर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर चैलेंज करते थे। क्या चैलेंज? उन शायरों को अपनी अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत पर उनको नाज था और अरबी ज़बान के ऊपर इतने मास्टर थे, अरबस्तान वालों को छोड़कर दूसरे लोगों को अजम गूंगे कहते थे वो। तो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी चैलेंज किया कि नऊज़ बिल्लाह हम भी कुरान पाक जैसा, कुरान पाक सिमिलर टू दैट ऑफ द कुरान, कुरान के जैसा हम भी कुछ बनाएंगे, नऊज़ बिल्लाह। तो ये चैलेंज था बड़े बड़े टॉप क्लास के शायर लोगों का। तो ये चैलेंज को 5 जगहों पर कुरान पाक में उसका जवाब दिया गया है, 5 जगहों पर। मैं सिर्फ एक जगह का जिक्र करूंगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। ये सैयदानों को चैलेंज किया था। अब जो शायरों को जो चैलेंज किया वो ये है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में वो इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन व इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अगर तुम शक कर रहे हो इस कुरान पाक में जो हमने अपने बंदे और रसूल पर नाज़िल किया है, तो बुला लाओ तुम्हारे सारे माबूदों को और सारे गवाहों को और बना डालो कुरान पाक जैसी एक सूरत, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फइल्लम तफअलू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, वलन तफअलू, यकीनन ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे। ये कुरान पाक का स्टैंडिंग चैलेंज है और सिर्फ अरबस्तान वालों के लिए चैलेंज नहीं, ये एक सूरत दूर की बात, पूरे दुनिया वाले भी अगर कोशिश करेंगे तो एक आयत भी बनाकर पेश नहीं कर सकते। और ये चैलेंज सिर्फ आज तक नहीं, क़यामत की सुबह तक भी कोई एक इंसान भी कुरान पाक जैसी एक सूरत बनाकर पेश नहीं कर सकेगा। ये चैलेंज हमारा तुम्हारा नहीं है, ये चैलेंज अल्लाह ताला का है। और ये अल्लाह ताला का चैलेंज स्टैंडिंग चैलेंज ही रहेगा। वो चैलेंज को क्रॉस करने वाले, उस चैलेंज को तोड़ने वाले कोई पैदा नहीं होगा दुनिया के अंदर। फिर आज का जो दौर है वो साइंसदानों का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। 50 से ज्यादा आयतों का कलेक्शन है मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों को चैलेंज किया कुरान है। जैसा कि अरबस्तान के शायरों को, पोएट्स को जो चैलेंज किया अल्लाह ताला ने, एक सूरत बनाकर पेश करो, तो वो नहीं कर सके। तो ऐसे ही साइंसदानों को भी 1400 साल पहले आज के साइंसदानों को कुरान पाक में 50 से ज्यादा जगहों पर चैलेंज किया है। उसमें एक चैलेंज सूरह हामी मसजदा आयत नंबर 53 में 53 में, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। ये मुनकिरीन हक़, ये हक़ को झुटलाने वाले, ये काफिर लोग, ये आसमानों में तहक़ीक़ात करेंगे, जमीनों के ऊपर जो चीजें हमने फैला दी हैं इस पर रिसर्च करेंगे, तहक़ीक़ात करेंगे, जमीनों के अंदर जो चीजें हमने छुपा रखी है उस पर तहक़ीक़ात करेंगे, और खुद तुम्हारे बॉडीज के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो चीजें हमने छुपा रखी हैं उस पर वो तहक़ीक़ात करेंगे। और तहक़ीक़ात करते करते एक दिन ऐसा आने वाला है कि सारे के सारे मुनकिरीन हक़ मान लेंगे कि कलामुल्लाह कुरान पाक बरहक़ है। ये चैलेंज साइंसदानों को है। ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारे साइंसदानों ने कुरान पाक को रिसर्च करके इस्लाम कबूल किया है। इसकी एक लंबी लिस्ट है। ये काम हम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये काम जो है ना काफिरों को अल्लाह ताला सौंपा है, वो तहक़ीक़ात कर रहे हैं कुरान पाक के अंदर, क्योंकि ये कुरान का चैलेंज है। ये मुनकिरीन है जो हक़ को झुटलाने वाले, जो कुफ्र करने वाले, वो तहक़ीक़ात करेंगे किस पे?
आसमानों में, जमीनों के ऊपर, और खुद तुम्हारे जिस्मों के अंदर जो चीजें हैं उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर तहकीकात करेंगे और सारे के सारे मान लेंगे कि कलामुल्लाह कुरान पाक पर हक है। आज मेरा उन्वान जो है कुरान और साइंस। साइंस कोई ये किताब जो है ना आसमान पर से नाजिल नहीं हुई है। साइंस के बारे में गौर फिक्र करना, तदब्बर करना, जितना इंसान गौर फिक्र करेगा, तदब्बर करेगा, उसको मालूमात में इजाफा होगा, उसी को साइंस कहा जाता है। आसमानों में गैलेक्सीज के बारे में अगर रिसर्च करूंगा तो वो भी एक साइंस है, इसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में अगर इंसान की बॉडी के बारे में अगर तहकीकात करूंगा तो उसको मेडिकल साइंस कहते हैं। अगर कंप्यूटर के बारे में करूंगा तो उसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जितना जो है ना तहकीकात करेगा इंसान, उसे मालूमात होते रहेंगे और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि कुरान ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम हमने बता दिए। वल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लाहा, आदम अलैहिस्सलाम को जब तक भी रिसर्च होने वाला है, क़यामत तक भी जो जो चीजें ईजाद होने वाले हैं, सारे के सारे नाम तो बता दिए। सारे के सारे नाम ही नहीं बताए बल्कि उसके फंक्शनिंग भी बताए, वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं वो भी बताया। तो जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती रहेगी दुनिया के अंदर, मालूमात में इजाफा होता रहेगा। वो मालूमात में जो इजाफा हो रहा है उसी को साइंस कहते हैं। अब कुरान और साइंस, कुरान पाक के अंदर साइंसी मालूमात जो कुरान पाक के अंदर 1400 साल जो पहले हुई थी, वो आज के साइंसदान तहकीकात करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। चंद चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले हम आएंगे क़यामत के उन्वान पर। क़यामत, पूरे साइंसदानों का मानना यह है कि क़यामत आएगी। ये आसमान और जमीन जो कुछ भी जो चीजें हैं ये सारे के सारे फना हो जाएंगे। ये हजारों लाखों करोड़ों के गैलेक्सीज खत्म हो जाएंगे, चांद सितारे सैयारे सब खत्म हो जाएंगे। तमाम का मानना है एस्ट्रोनॉमर्स का, इल्म नजूम के जो माहिरीन होते हैं, इल्म फल्कियात के जो माहिरीन होते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तमाम की इत्तेफाक राय है कि सूरज चांद सब कुछ जो है ना खत्म हो जाएंगे। और साइंसदान ये कहते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। ये जमीन जो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये आसमान, चांद सितारे सैयारे, ये सब क्या थे, पहले क्या था, ये कैसे वजूद में आए, आसमान कैसे वजूद में आया, ये जमीन कैसे वजूद में आई, चांद सितारे सैयारे ये सब सारी चीजें जो फैले हुए हैं ये कैसे वजूद में आए, ये पहले क्या था। एस्ट्रोनॉमर्स से दबानी सुनिए, बाद में मैं कुरान पाक को आऊंगा। एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमर, 100 से ज्यादा इल्म फल्कियात के माहिरीन का मुत्तफिक राय ये है। मैं यहाँ पर साइंस के हक़ायक़ जो बहुत सारे साइंसदान मानते हैं, सिर्फ हक़ायक़ को मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस के अंदर अजम्पशंस करके होते हैं। अजम्पशंस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसी चीजें होते हैं, वो मैं बयान नहीं करूँगा। क्योंकि साइंस के अंदर जो अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस जो होते हैं, हो सकता है कि दूसरा साइंसदान आकर उसे चेंज कर दे। ऐसी चीजों को मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो हक़ायक़ बयान कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कुरान से टैली होते हैं। कुरान से अगर डिफरेंस अगर था नहीं तो वैसे हक़ायक़ में बयान नहीं करता, कहीं पर भी बयान नहीं करता, कहीं पर भी इख्तिलाफी बात नहीं करता, क्योंकि इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहिए। तो जो हक़ायक़ से इसकी दुनिया से जो कुरान पाक को टैली होते हैं उसी को मैं बयान करूँगा। पहले आइए कायनात कैसे वजूद में आई। साइंसदान कहते हैं कि कायनात प्राइमरी नेबुला दैट वाज इन गैसियस फॉर्म, ये प्राइमरी नेबुला जो है आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सैयारे सब मिलके थे और प्राइमरी नेबुला गैसियस फॉर्म एक गैस के गोले की शक्ल में थे। आसमान, जमीन, चांद, सितारे सब क्या थे, गैस के गैसियस फॉर्म, गैस के गोले की शक्ल में थे। गोले के अंदर बड़ा धमाका हुआ, ये एकदम बड़ा धमाका हुआ। तब क्या हुआ, सूरज, चांद, सैयारे, हजारों लाखों करोड़ों के कहकशाएं सब जुदा हो गए, आसमान भी जुदा हो गया और जमीन भी जुदा हो गई। जमीन भी आसमान से मिलकर थी पहले, और जमीन, आसमान सब पूरे चांद, सितारे, सैयारे पूरे गैस के गोले की शक्ल में थे।
गोला फटने के बाद जो है ना सब जुदा हो गए। अगर आप यहाँ से खड़े होकर आप दूर तक निगाहें दौड़ाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आसमान जाकर कहीं जमीन पर टच हुआ है, ऐसा लगता है। ये प्रूफ अल्लाह ताला इसलिए रखा है, कहीं पर भी आप दुनिया घूम आइए, कहीं पर भी आसमान जमीन को टच नहीं हुआ है, मगर दिखता है ऐसा। खड़े होकर देखें तो आसमान जाकर जमीन को कहीं पर ग्राउंड हो गए, वहां पर टच हो गए जैसा दिखता है। ये प्रूफ इसलिए अल्लाह ताला रखा है कि जमीन भी आसमान से मिलकर थी पहले, बाद में जुदा हो गए, सेपरेट हो गए। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि सब जुदा हो गए, आसमान अलग, चांद अलग, सूरज अलग, हजारों लाखों करोड़ों की गैलेक्सीज अलग, सब जुदा हो गए और ये फैल रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों की जो गैलेक्सीज हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। और फैलने के बाद जो ये है ना, वो फैलने का अमल खत्म हो जाएगा, ये फिर सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाएगा। फिर सिकुड़ते 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 चांद, सितारे, सैयारे सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, सब एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगे, जिसे हम क़यामत कहते हैं। साइंसदान जो है ना डूम्स डे कहते हैं, यानी पूरे सितारे, सैयारे, सूरज, चांद, आसमान, जमीन कुछ भी नहीं होगा, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसको साइंटिस्ट डूम्स डे कहते हैं कि पूरे एकदम दूसरे से टकरा जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अब ये जो बिग बैंग कायनात कैसे वजूद में आई, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 4 जगहों पर फरमाया है। कितने जगहों पर? 4 जगहों पर ये कायनात कैसे वजूद में आई, 4 जगहों पर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ा कानता रत्क़ा फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। यही आयत दी गई है आज। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ा कानता रत्क़ा फफ़तक़नाहुमा, आसमान और जमीन सब मिल के थे, बाद में जो जुदा हो गए, सेपरेट हो गए। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ा, ये समावाती वल अर्ज़ा, जमीन और आसमान मिलते फफ़तक़नाहुमा, बाद में सेपरेट हो गए, पहले मिलके थे जमीन आसमान। कुरान कह रहा है फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन अफ़ला युमिनून। फिर जो है ना ये आसमान और जमीन, चांद, सितारे जो है ना वो एक गैसियस फॉर्म में थे, जिसको सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखान। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि दुखान इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कुरान इज यूज्ड फॉर प्राइमरी नेबुला दैट वाज इन गैसियस फॉर्म। प्राइमरी नेबुला आसमान और जमीन सब ये गैस की गोले की शक्ल में थे, कि जो साइंसदान जो आज कह रहे हैं, इससे भी अगर बेहतरीन से बेहतरीन अगर लफ्ज है तो वो कुरान पाक का लफ्ज दुखान है। दुखान के माने धुएं के गोले की शक्ल में थे। गैसियस फॉर्म, प्राइमरी नेबुला दैट वाज इन गैसियस फॉर्म, जो साइंसदान आज कह रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स कह रहे हैं, वो साइंसदानों से भी बेहतर से बेहतर अगर कोई वर्ड हो सकता है, अगर बेहतर से बेहतर अगर कोई एक लफ्ज हो सकता है, तो कुरान पाक का लफ्ज सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 11 और 12 में एक धुएं के गोले की शक्ल में थे, फिर आसमान और जमीन जुदा हो गए। ये सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 11 और 12। फिर सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाता है, आसमान और जमीन, चांद, सितारे, सैयारे सब जुदा होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, हम आसमानी दुनिया के अंदर जो सितारे, सैयारे, जो गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर हम उसर दे रहे हैं, फैला रहे हैं, फैला रहे हैं। मुसीबत का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान पाक ने। मुसीबत का लफ्ज जो है ना, ये आसमान और जमीन के जो सैयारे, सितारे जो है ना, वो फैल रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पेज नंबर 27 में लिखता है, the most scientific and intellectual finding of the 20th century is the expansion of this universe. 20वीं सदी में बेहतरीन से बेहतरीन जो तहकीकात साइंस की दुनिया के अंदर हुई है, उसमें ये भी एक है कि कहकशाओं के अंदर फैलाव हो रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड बढ़ने को जा रहा है। सूरह ज़ारियात को आयत नंबर 47 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अच्छी तरह पढ़ा था। एक्सपेंशन दिया, कायनात के अंदर कैसे मुसद्दत दे रहे हैं, कैसे मुसीबत, कैसे अल्लाह ताला फैला रहा है, जिसको अल्लामा इकबाल ने सूरह ज़ारियात के आयत नंबर 47 में अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आ रही है दमादम फदाए कुन फयकून, ये कायनात अभी नातमाम है शायद,
ये कायनात जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है। सेम सूरह ज़ारियात का आयत नंबर 47 को अल्लाह इकबाल ने कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, ये कायनात अभी नातमाम है, शायद अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी एक्सपेंशन हो रहा है। मगर एक दिन ऐसा होगा कि फैलने का अमल जो है ना कांतरे डेड एंड पे जाके खत्म हो जाता, फिर जो है ना सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, फिर सिकुड़ते एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरे सैयारे सितारे जो है ना एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। जिस सूरह अंबिया है तो 104 में अल्लाह ताला फरमाता है एक दिन ऐसा आने वाला है कि सारे के सारे कायनात को हम ऐसा लपेट देंगे जैसे कि किताबों के बंडल को लपेटा जाता है। हमने इस कायनात की इब्तिदा की थी और हम इस कायनात को खत्म करेंगे, ये हमारे जिम्मे एक वादा है और इस वादे को हम पूरा करके ही रहेंगे। अब मुझे आप बताएं, पूरे बिग बैंग को कुरान पाक में सूरह अंबिया आयत नंबर 30, सूरह हामी मसजदा आयत नंबर 11 और 12, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 और सूरह अंबिया आयत नंबर 104 में 1400 साल पहले पूरे बिग बैंग को कायनात कैसे वजूद में आएगी 1400 साल पहले कुरान पाक में बयान कर दिया गया है, जो 50, 60, 70 साल तक लोग नहीं जानते थे कि कायनात कैसे वजूद में आई है। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, हमारी साइंटिफिक फील्ड में हमें यह सिखाया जाता है कते कुदरे ऐसा करते वैसा करते नहीं। अब रिकॉर्ड हो रहा है, आप कुरान पाक निकाल कर देखना, इन 4 आयतों के अंदर पूरा बिग बैंग है, कायनात कैसे वजूद में आई। फिर साइंटिस्ट कहते हैं, किताब का नाम है द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द सन, सूरज की पैदाइश और सूरज की मौत, डॉक्टर जॉर्ज गमू की लिखी हुई किताब है। सूरज कब पैदा हुआ, सूरज कब मरेगा, द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द सन, सूरज की पैदाइश और सूरज की मौत, वो किताब है। उस किताब के रेफरेंस में मैं आप बात करूंगा बाद में, क्योंकि क़यामत के 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, अलग अलग स्टेजेस हैं। मैं पहला स्टेज को आऊंगा। क़यामत का पहला स्टेज जो ये है ना, अल खारिया, वमा अदराक मल खारिया, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, एक अजीम बम्बार्डमेंट होगा। अल खारिया, वमा अदराक मल खारिया, तुम क्या जानोगे वो हेवी बम्बार्डमेंट पूरी कायनात में होने वाला है, तुम्हें मालूम क्या? कुरान पाक सवाल इसलिए करता है, कुरान पाक सुलाने की किताब नहीं है, जगाने की किताब है, सोना नहीं है, जागना है। कुरान पाक को समझने के लिए वमा अदराक मल खारिया, तुम क्या जाना कि वो खारिया क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान परेशान परवाना की तरह हवा में उड़ जाएंगे। वो तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और ये पहाड़ आपस में टकरा के रुई के गाल बन के उड़ जाएंगे। ये कैसे होगा? बाद में आऊंगा, क्योंकि स्टेज 1 को स्टेज 2 को कंबाइन नहीं कर सकता मैं, अलग अलग स्टेज में जाना पड़ता क़यामत। सूरह तकवीर आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सूरह तकवीर, इज़ा शम्सु कुविरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुयिरत व इज़ा इशारु उद्दिरत व इज़ा कुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुजिरत व इज़ा नुफूसु सुविजत व इज़ा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुदिरत। इज़ा शम्सु कुविरत, सूरज की पूरी गर्मी जो ये है ना, वो पूरे हम खत्म कर देंगे, सूरज को डेड कर देंगे, सूरज की पूरी रोशनी जायल कर देंगे, पूरा जो है ना उसे अमामा बांध देंगे, सूरज को अमामा बांध देंगे, पूरा जो है ना एकदम खत्म हो जाएगा सूरज। सिर्फ इज़ा शम्सु कुविरत को मिनिमम आधा घंटा होना एक्सप्लेन करना, क्योंकि किताब का नाम रेफरेंस दिया हूं। कौन सी किताब? डॉक्टर जॉर्ज गमू की द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द सन, सूरज की पैदाइश और सूरज की मौत। मैं सिर्फ जंपिंग पॉइंट्स में हाइलाइट्स के तौर पर इज़ा शम्सु कुविरत को आपके सामने रखूंगा। ये सूरज से जो है ये निकल रहा है, ये कैसे खत्म होगा? सैयदान कहते हैं कि सूरज की ओरिजिनल गर्मी जो है ना 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दावणगेरे में मौसम गर्मा में समर में अगर 38-40 भी चले गया तो बहुत ज्यादा, 40 डिग्री बहुत ज्यादा,
बाहर निकलने होता नहीं 40 डिग्री में, कहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख माइल दूर पर है, किलोमीटर नहीं माइल दूर पर है सूरज। और सूरज की एक एक किरण जमीन को पहुंचना तो 12 से 13 मिनट होता। 9 करोड़ 30 लाख माइल दूर पर गर्मी जो है ना 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक एक किरण जो है ना जमीन को पहुंचना तो 12 से 13 मिनट होता। अब ये सूरज के ताल्लुक से चंद अहादीस हैं क़यामत के, एक 8-10 हदीसा हैं सूरज कैसे खत्म होता कर बोल के। उसमें एक हदीस में आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशेंट को यानी क़यामत के ताल्लुक से, क्योंकि कुरान पाक की आयतों को हदीस को लागू कनेक्ट करना है। हदीसों के बगैर जो है ना हम कुरान पाक को नहीं समझ सकते। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 2223 के अंदर ये बात आती है कि सूरज के पर्दे फट जाएंगे, सूरज के पर्दे फट जाएंगे। शायद कुफार मक्का ने पूछा होगा कि कहां पर पर्दा नहीं दिख रहा, आंखों से भी सीधा खाली दिख रहा ना। डॉक्टर जॉर्ज को अपनी किताब के अंदर लिखता है कि सूरज के 4 पर्दे हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर्स। ये 4 पर्दों में से ओजोन लेयर्स में सूरज की किरणें जो है ना फिल्टर होती हुई जमीन को पहुंच रही हैं। 20 साल का डेटा कलेक्शन करेंगे एस्ट्रोनॉमर्स पूरी वर्ल्ड का। हर मौसम में गर्मा में टेम्परेचर बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा सो ये इसलिए बढ़ रहा है कि पूरे साइंसदानों का कहना है कि बीच में जो पर्दे हैं ना सूरज के, एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ओजोन लेयर, फोटोस्फीयर सभी, जिसमें पंचना पड़ रही। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा क्योंकि बच्चा को भी मालूम हो जाना। मैं साइंस के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर ये लेक्चर्स मेरे जो कॉलेजेस में होते हैं वो गवर्नमेंट साइंस के जो इंग्लिश में ही होते हैं। मैं सिंपल उर्दू में मैं आपको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वो पंचर्स पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जार्जियो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि 20 लेयर्स ऑफ द सन आर रप्चरिंग। पर्दा में पंचना पढ़ले को जारी, ओजोन लेयर भी डिस्टर्ब हो रही। डॉक्टर जार्जियो अपनी किताब द बर्थ एंड डेथ ऑफ द सन, सूरज की पैदाइश और सूरज की मौत के अंदर लिखता है कि एक दिन पूरे पर्दे एकदम हट जाते हैं। पंचना होते कितने पंचना समाता, पूरे पंचना होते पर्दे क्या हो जाती, खिसक जाती। खिसकने के बाद डॉक्टर जार्जियो कहता है कि जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये फिल्टर होकर जमीन को आ रही है गर्मी, तब डायरेक्ट पड़ जाती है जमीन के ऊपर, डायरेक्ट पड़ जाती है। एक चीज ये, और वो कहता है कि सूरज के अंदर एक तेल है। भाई साइंस के टर्म्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हुए, चराग में एक तेल जिसे हाइड्रोजन कहती है। हाइड्रोजन जो तेल है ना वो हजारों साल से सूरज में जल रहे थे और वो राख में तब्दील हो रहा, हीलियम में तब्दील हो रहा। हाइड्रोजन जल रही है और वो हीलियम में तब्दील हो रही है। हाइड्रोजन जो तेल जो है ना सूरज के अंदर जल रहा है, हजारों लाखों तुम्हें बांपा डाले तो भी वो गर्मी को संभालने बत्ती गर्मी हो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तो क्या हिसाब है। तो वो जलने को है, वो तेल जलने को हाइड्रोजन कंप्लीट हीलियम में कन्वर्ट होने को है। यानी तेल जल रहा है, राख में तब्दील हो रहा है, तेल जल रहा है, राख में तब्दील हो रहा है। डॉक्टर जार्जियो कहता है one day all the thermonuclear reaction of the sun will be ceased and all the hydrogen that is completely converted into helium। वो कहता है कि एक दिन पूरा चराग का तेल जो है ना हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब पूरा तेल जब खत्म हो जाएगा सूरज का तो पूरा हाइड्रोजन जो है ना हीलियम में तब्दील हो जाएगा और पूरे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज के हैं पूरे सीज हो जाती। सीज एकदम जब होती तो एकदम भड़कीला चराग जो है ना एकदम भड़क के जो बुझता ना, वैसा सूरज जो है ना एकदम भड़क के बुझ जाता, जिसे कुरान ने कहा इज़ा शम्स कुविरत। मैं पहले ही कहा ना इज़ा शम्स कुविरत को मिनिमम आधा घंटा पूरी किताब का एक्सप्लेन करना पड़ता है कैसे सूरज खत्म होता है। खाली में जंपिंग पॉइंट में मुगल्स जो है ना वो मैं बयान करूं। इतना बड़ा इल्म है ये जो है ना एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज से हमें कन्विंस कर सकते हैं कि कुरान जो है ना बराबर है।
यही रिसर्च करके इस्लाम कबूल कर रही सो उन्हों मुसलमान नहीं कर रहे, उन्हों कर रही सही सुना उन्होंने कुरान के ऊपर। इज़ा शम्सु कुविरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों के तारे वो इज़्ज़त नुजूमुन कदरत एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वो इज़्ज़त नुजूमुन कदरत हम ना आज तक समझ में नहीं आया, हमें परेशान परवानों की तरह कैसे उड़ती नहीं ऊपर, ये पहाड़ आपस में टकरा के रुई के गाल बंदे कैसे उड़ती, हम ना मालूम नहीं है उसका जवाब। डॉक्टर जॉर्ज गेमो को मालूम हुआ कैसा उड़ती है पहाड़ा। अल खारिया वमा अदराक मल खारिया यौमा यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल नहलिल मंफूस। हम इंसान जो है ना वो हैवी बम्बार्डमेंट के साथ जो है ना परेशान परवानों की तरह हवा में उड़ेंगे और ये पहाड़ जो है ना आपस में टकरा के रुई के गाल बन के उड़ जाएंगे। ये कैसे होगा? सूरह ar-Rahman में अल्लाह ताला फरमाता है अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में चल रहे हैं। पूरी कायनात में हर चीज भी अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा जो चीज है उसके मुताबिक चल रही है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। वो वहां सही सलामती से जो काम हो रहा है कायनात के अंदर, इस वास्ते हमें भी सही सलामत यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर जॉर्ज गेमो कहता है कि मिसाल के तौर पर एक सैयारा मार्स है, अगर वो अपने ऑर्बिट छोड़कर जुपिटर की तरफ भी अगर चला गया, एक दूसरे से टकराने के करीब करीब भी हो गया, then the earth will lose its gravitational pull। आप अगर पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो आपका पत्थर इसलिए वापस आ रहा है कि जमीन पे मगनातीसी कशिश है, इधर ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए खींच रही है जमीन, वरना आपका पत्थर जो है ना ऊपर चले जाना था। आपका पत्थर जो है ना इसलिए वापस आ रहा है कि जमीन को इधर खींचने की ताकत है। डॉक्टर जॉर्ज गेमो कहता है ये प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स को टकराने के करीब भी हो गया तो हजारों टन वजन की चीज जो जमीन के ऊपर है ऑटोमेटिकली ऊपर लिफ्ट हो जाती है। वो कहता है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इधर खींचने की ताकत जो जमीन पे है वो जमीन ताकत खोलेगी, ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। जब एक सैयारा अपने ऑर्बिट छोड़कर अगर टकराने की कोशिश किया तो ये हालत, तो कुरान कह रहा है वो इज़्ज़त नुजूमुन कदरत, हजारों लाखों करोड़ों के तारे जो है ना एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। वो इज़्ज़त नुजूमुन कदरत इज़्ज़त समाउ कुशितत, आसमानों के अंदर जो है ना फाड़ देंगे। इज़्ज़त समाउ कुशितत, इज़्ज़त समाउन फदरत, आसमानों के पर्दे को हम फाड़ देंगे। इज़्ज़त समाउ कुशितत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आप क़यामत के दिन सेफ्टी जोन में अगर रहना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 सूरतें पढ़ें। कौन सा? सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप रोज़े महशर की हौलनाकियों से अगर महफूज अगर रहना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू 3 सूरतें ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे। कौन सा? सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह इंशिकाक। ये तीनों में भी क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है। इज़्ज़त समाउन फदरत, आसमानों को हम फाड़ देंगे, आसमानों के जो पावर है उसे खत्म कर देंगे, आसमानों के 7 पर्दों को हम फाड़ देंगे। इज़्ज़त समाउ कुशितत, इज़्ज़त समाउन शक़्क़त। सूरह नबा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नबा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है वो फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, हम आसमानों के बंदिशों को, आसमानों के डोर्स को हम ओपन कर देंगे। जब ये हाल होगा तो जब 7 आसमानों के जब ये बिखर जाएंगे तो ये सितारे सैयारे कहाँ रहेंगे? वो भी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वो इज़्ज़त नुजूमुन कदरत, और एक दूसरे से टकरा के जो है ना खत्म हो जाएंगे हजारों लाखों करोड़ों की गैलेक्सीज। इज़्ज़त शम्सु कुविरत व इज़्ज़त नुजूमुन कदरत व इज़्ज़त जिबालु सुयिरत, पहाड़ चलाए जाएंगे। मगरिबी पाकिस्तान में एक बार ज़लज़ला हुआ था,
CNN न्यूज के ऊपर आकर एक साइंटिस्ट पूछता है कैसा लगा इतना बड़ा जलजला होना, कैसा लगा? वो कहता है कि पहाड़ा मुंह वैसा दिखा, मुझे पहाड़ा शेप वैसा का दिखा, एक जगह जो जलजला आया वो आपको इसका जिक्र करते हैं। तो ये जो जलजला ये हो रहा है, ये पहाड़ा जो चलाए जाएंगे, जो सूरह तकवीर में अल्लाह ताला फरमा रहा है इधर शम्सु कुविरत व इधर नुजूम मुनकदर व इधर जिबालु सुयरत, पहाड़ चलाए जाएंगे। पहले जो है ना एक दूसरे से टकराने से पहले स्टेज में पहाड़ चलाए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अंबिया आयत नंबर 31, सूरह अन-नहल आयत नंबर 10, सूरह लुक़मान आयत नंबर 15, सूरह गाशिया आयत नंबर 19, सूरह नबा आयत नंबर 7, सूरह नाज़ियात आयत नंबर 32, सूरह नबा आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ल जिबाला अवतादा, हमने पहाड़ों को जमीनों के अंदर इसलिए गाड़ा है ताकि जमीन शेक ना हो जाए। फ्रैंक प्रेस की किताब है, किताब का नाम है दार, एमएससी जियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, किताब का नाम है दार, फ्रैंक लिखने वाला फ्रैंक प्रेस, पेज नंबर 27 के ऊपर लिखता है, एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ा का काम क्या, वो चैप्टर, वो डिटेल्स है, वो फंक्शंस ऑफ द माउंटेन्स क्या है, वो डिटेल में जाना पड़ता। पहाड़ा अगर नहीं रहते तो जलजले आम हो जाते थे। मेरे काम की तरह गाड़ को है अल्लाह ताला पहाड़ों को, वो इज़ल जिबाला अवतादा, हमने पहाड़ों को जमीन के अंदर इसलिए गाड़ा है ताकि जमीन हिल ना जाए, जमीन शेक ना हो जाए। सूरह नबा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ल जिबाला अवतादा। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ल जिबाला अरसाहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वइज़ल जिबाला अवतादा एंड वइज़ल जिबाला अरसाहा? वइज़ल जिबाला अरसाहा में भी वइज़ल जिबाला अवतादा में डिफरेंस क्या? कई पहाड़ जो आप देख रहे हैं उसके जड़ा अंदर जाकर है, कई पहाड़ा डीप पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, जितना ऊपर तुम्हें पहाड़ा दिख रही वत्ता अंदर जाकर ही उसे कुरान ने कहा वइज़ल जिबाला अरसा। जर्रे पहाड़ा क्या कर उसके जड़ा जो है ना डीप जाको नहीं, जैसे कि आप शामियाना को टेंट को जो है ना टेक्स पार्क पर शामियाना खड़ा करती, ऐसा अंदर डीप जाको नहीं जरे पहाड़ा। उसे क्या कहा पुराने भाई ने वइज़ल जिबाला अरसाहा, अरसाहा को भी वइज़ल जिबाला अवतादा कहा। डीप पार्ट्स नहीं जाता है ना उसे अवतादा कहा, डीप पार्ट्स को कुरान ने क्या कहा अरसा। अवतादा का भी वर्षा को डिफरेंस भी जो है ना आज के सही तरह बयान करें जो पुराने पाक ने 1400 साल पहले बयान किया है। तो पहले जो है ना पहाड़ चलाए जाएंगे और चलाए जाने के बाद जो है ना जब जमीन की मक़नातीसी कशिश जमीन खोलेगी तो ऊपर जो है ना चीज़ें ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाती, तो ये पहाड़ भी क्या हो जाती है आपस में टकरा के टुकड़े बन जो है ना एकदम मुड़ना शुरू कर जाते। सूरह ताहा की आयत नंबर 105 और 106 107 में पूछा गया अये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहाड़ कैसे आपस में टकराएंगे? उसका जवाब नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला देता है अये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि हम इन पहाड़ों को आपस में टकरा देंगे, रेत के तोदे बना देंगे, गुबार बनाकर धूल बनाकर हम उड़ा देंगे इन पहाड़ों को। सूरह हाफ़ा आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला फरमाता है हम इन पहाड़ों को जमीन समेत ऊपर उठाएंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे और वो धूल बनाकर हम इन पहाड़ों को उड़ा देंगे। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है हम पहाड़ों को आपस में टकरा के धूल बना देंगे, रेजा रेजा कर देंगे, गुबार बना देंगे, गुबार बनाकर हम उड़ा देंगे। सूरह फजर आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, हम जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर देंगे और जमीन सारा बोझ बाहर उगल देगी। सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 1 2 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, हम जमीन को पूरी शिद्दत के साथ हिला डालेंगे और जमीन सारा बोझ बाहर उगल देगी। ये सीन होगा क़यामत का। वो इज़ल जिबाल इज़ल शम्सु कुविरत व इज़ल नुजूम मुनकदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत व इज़ल इशारु उतिलत व इज़ल वहूशु उजिरत। जब 10 महीने की हामिला ऊँटें अपने हाथ पर छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, वो जंगली जानवर जो है ना जंगलों से निकल कर आपके दावण के पब्लिक में गोडाउन में आ जाएंगे, मगर वो आपके
आपको अटैक नहीं करेंगे और आप भी उन जानवरों से टाइगर से आप भी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो डरने से बड़ा डरना है ना क़यामत का जो ज़ल्ज़ला जो है ये हौलनाकियों में क्या शेर क्या रीछ क्या बात। अब यहाँ पर अगर कोई शेर आया तो एक आदमी बैठती क्या बैठती क्या, मगर जब जो है ना वो कुरान ने कहा जंगली जानवर समेट कर जो है ना जंगलों से इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारे पब्लिक एरिया में आ जाएंगे, आपको अटैक नहीं करेंगे। क़यामत का जो मंजर है अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर सूरह हज आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है यकीन जानो कि क़यामत का जो ज़ल्ज़ला है वो अजीम ज़ल्ज़ला होगा। उस दिन दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पिलाते बच्चों को भूल जाएंगी और जिन औरतों के हमल टिके हुए हैं वो हमल गिर जाएंगे, लोग तुमको नशे की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। यकीन जानो कि क़यामत का जो ज़ल्ज़ला है वो अजीम ज़ल्ज़ला होगा। सूरह अबस आयत नंबर 34, 35, 36 के दरमियान अल्लाह फरमाता है एक कानों को बहरा कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, तुम अपने खबीश व खालिद से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से तुम दूर भागोगे। हर आदमी को यही मशगला होगा कि मेरा क्या होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अब भी मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी नहीं हूं क़यामत के वक्त। इतना बड़ा ज़ल्ज़ला होगा। वो इज़ल वहूश हुशिरत, जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वो इज़ल बिहार सुजिरत, पूरे समंदरों को अंगार लगा दो। जमीन को अगर माप डाले तो इधर से उधर पकड़ को करेक्ट 70% जो है ना पानी है, 30% क्या है, 30% जमीन है, 70% क्या है, पानी है, समंदर। 72% जो पानी है उसमें टोटल समंदर में अंगार लगा कर तो बोल रहा अल्लाह ताला वो इज़ल बिहार सुजिरत। अब वो इज़ल बिहार सुजिरत को समझना तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता। कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, हमारे कई बच्चे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी ग्रेजुएशन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले को मालूम बताओ वो इज़ल बिहार सुजिरत जो है ना वो मालूम। अब ये वो इज़ल बिहार सुजिरत जो है ना टोटल समंदरों के अंदर आग लगाते हैं अल्लाह ताला बोलते हैं। अब ये सूरह तकवीर की आयत नंबर 6 वो इज़ल बिहार सुजिरत, सूरह तकवीर की आयत नंबर 6 को समझने के बाद सूरह इन्फितार की आयत नंबर 3 को पढ़ना पड़ेगा। कुरान पाक जो है ना हम टांग पटांग डालने को ढुल्लू को पढ़ कर समझने का तो पता नहीं, रात भर मेहनत करना पड़ता। मेहनत में तो क्या चीज भी दुनिया में हासिल नहीं होती। एक डिग्री हमें दुनिया की लेना तो कितना पापड़ बेलना पड़ता। वैसे तो कुरान पाक को समझना तो क्या मामूली की था कुरान पाक। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वइज़ल बिहार सुजिरत एंड वइज़ल बिहार फुजिरत? वइज़ल बिहार फुजिरत के माने ये है कि समंदर के डेड एंड को हम फाड़ देंगे। समंदर का जो डेड एंड होता उसे हम फाड़ देंगे। अब जो है ना समंदर के जो डेड एंड है उसके अंदर 50,000, 60,000, 70,000 डिग्री का लावा अंदर गर्म हो रहा, ये पूरा बाहर निकलता है, समंदर के डेड एंड से बाहर निकलता। कब निकलता? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन को हम पूरी शिद्दत से हिला डालेंगे और जमीन सारा बोझ बाहर उगल देगी। पूरी टोटल जमीन के ऊपर जब ज़ल्ज़ला आता, जब फेंक होता तो समंदर के डेड एंड फट को क्या होता, पूरा लावा अंदर जो गर्म हो रहा बम को बाहर आता। बाहर आने के बाद समंदरों के अंदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसे फॉसिल्स कहा जाता है, सड़े गले चीजें जो समंदर के जानवर जो रहती हैं उनके अंदर जो सड़े गले चीजें होती उसे फॉसिल्स करके बोलते हैं ना, सड़े गले चीजें। उसके अंदर चेन केमिकल रिएक्शंस होती, उसके अंदर चेन केमिकल रिएक्शंस होने के बाद, इसीलिए मैंने कहा कि केमिस्ट्री का जानना बहुत ही जरूरी है। चेन केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो है ना ये जो लावा जो अंदर से जो बम को रहा वो भी मिक्स होता है, वो भी मिक्स हो अल्लाह के जो ये है ना एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स फॉर्म होते हैं समंदर के अंदर। तो ये एक दूसरे से चेन केमिकल रिएक्शंस होते 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 पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन
H2O है, H2O जो पानी का कंसंट्रेशन है वो बदल जाता। बदलने के बाद आज हम क्या देख रही, पानी डाले तो आप दृष्टि करके देख रही हमें, हमारा ईमान उसके ऊपर है। आग लगी तो क्या करना भाई, पानी डालना। ये उल्टा करता अल्लाह ताला, और ये उल्टा करना है तो मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला तो बोला सही गाना बोल रही। केमिस्ट्री के माहिर कैसा है उलट फेर होता, और पूरे केमिस्ट्री के माहिरीन की ये मुत्तफिक राय है कि टोटल समंदरों के अंदर अम्लाक लग के वइज़ल बिहार सुज्जिरत वइज़ल नुफूस ज़ुविजत, जब जानों को जिस्मों से जोड़कर खबरों से खड़ा किया जाएगा। कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में, मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि आप देखिए कुरान पाक। सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, पूछा गया सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब हमारी खबरों के अंदर सारे आज़ा गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, हिड्डियां हो जाएंगी, तो कौन है जो हमें खबरों से खड़ा करने वाला? कुफार मक्का का सवाल किसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसका जवाब कुरान क्या दे रहा? सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में, अये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि सिर्फ उनके गले सड़े आज़ा को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बोसीदा हड्डियों को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उनके फिंगर प्रिंट्स को भी ठीक उसी तरह बना देने पर हाजिर हैं, उनके उंगलियों की लकीरों को भी ठीक उसी तरह बना देने पर हाजिर हैं। फ्रांसिस बेकन नामी साइंसदान तकरीबन 250 साल पहले एक किताब लिखा है, किताब का नाम है फिंगर प्रिंटिंग मेथड। फिंगर प्रिंटिंग मेथड में फ्रांसिस बेकन लिखता है कि जब से इंसान पैदा हुआ है और आज तक क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे उनके फिंगर प्रिंट्स अलग अलग है। मेरे बेटे को भी मेरे मैच नहीं होते, बहनों के मैच नहीं होते, माँ बेटी के मैच नहीं होते। जब से इंसान पैदा हुआ आज तक मेरा सेम हूबहू से दूसरा मार सकता, मगर मेरे फिंगरप्रिंट ही। इसीलिए सही करने वाले को भी ये नहीं सो रजिस्ट्रेशन कराना तो सभी सिर्फ उनके गले सड़े आज़ा को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बोसीदा हड्डियों को ही जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उनके उंगलियों की लकीरों को भी ठीक उसी तरह बना देने पर हाजिर। आधार कार्ड बनाने जाती, अंकों का स्कैन लेती, पूरे साइंसदान बोलती 800 करोड़ इंसान दुनिया में अब नहीं, कितने हैं? 800 करोड़, मोर देन 800 करोड़, मोर देन 800 करोड़ के दुनिया की रेटिना जो पुतली है अंकी की अलग अलग। आपकी अंकी की पुतली उनकी मैच नहीं होती, उनकी मजे मैच नहीं होती, उस वक्त स्कैन करते हैं आधार कार्ड में। क्या वास्ते आधार कार्ड में स्कैन करते हैं? अच्छा, 800 करोड़ इंसानों की जो है ना रेटिना ऑफ द आई अलग अलग, 800 करोड़ इंसानों की फिंगरप्रिंट अलग अलग, 800 करोड़ इंसानों के पसीने की बू अलग अलग। पुलिस के कुत्ते जो है ना जाकर पकड़ देना चोर को, पसीने की बू अलग अलग। 800 करोड़ इंसानों के पसीने की बू अलग अलग, 800 करोड़ इंसानों की जो है ना रेटिना ऑफ द आई अंकी की पुतली की क्वालिटी अलग अलग, 800 करोड़ इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग। क्या अल्लाह ताला की खुदाई नजर नहीं आती इसमें? क्या अल्लाह ताला की रुबूबियत नजर नहीं आती? सिर्फ उनके गले सड़े आज़ा को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बोसीदा हड्डियों को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उनके फिंगर प्रिंट्स को भी ठीक उसी तरह बना देने पर हाजिर हैं। सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4। वइज़ल नुफूस ज़ुविजत, जब जानों को जिस्मों से जोड़कर हम खड़ा कर देंगे। खबरस्तान को जाती हमें ढेरे लेको 3 बार पढ़कर डालती, क्या पढ़कर डालती? सो सूरह ताहा की आयत नंबर 55 पढ़ती, 3 बार पढ़कर फूक को डालती। सूरह ताहा आयत नंबर 55 है, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में तुमको लौटा रहे हैं। खबर में
फिर इसी मिट्टी से उठाकर खड़ा करेंगे। ये हकीकत मालूम करके फूक को डाले तो कुछ तो मालूम होगा। क्या फूक को डाले, सभी फूक को डाले, मैं भी डाया ढेरे। मिन्हा खलकनाकुम, इंसान को हमने मिट्टी से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को, फिर इसी मिट्टी में डाल दी तुमना लगा को। फिर बुरद महशर में क्या करती, तुमना जोड़ को इसी मिट्टी से जहां पर तुमना दफन किया गया वहां से हम कब्र करा देंगे। कुफार मक्का ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे जो है ना होता है कंफ्यूजन इंसान को, कैसे ये होता। मिसाल भी अल्लाह ताला मिसाल ने को समझाया, तुम पैदा होने से पहले क्या थे, तुम्हारा वजूद क्या था। अब्दुल जब्बार अगर 68 इयर्स का है तो 69 इयर्स पहले कहां था। कुरान गुजरा सो मुझे कहां था, तेरा वजूद क्या था, तू कुछ भी नहीं था। तेरी मां की पेट में तुझे ले लेकर आया, मां की पेट में तुझे डेवलप किया, डेवलप करके तू इंसान हुआ। अब मुझे सवाल करता है, दूध कैसे पैदा करता, अल्लाह ताला खबरों से कर दो। ये है अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम पैदा होने से पहले क्या थे, तुम एक अफीम नुत्फा बनने से पहले क्या थे, तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं था। हमने तुम्हें डिफरेंट स्टेजेस में माँ के पेट में पैदा किया। वो डिफरेंट स्टेजेस में माँ के पेट में तू अगर जाया हो जाता तो तू क्या करता था, तू क्या करता था, क्या तू अर्जी किया था क्या मैं पूरा सही सालिम निकलना बाहर कर बोल को, क्या था। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12, 13, 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से फिर हकीम नुत्फे में तब्दील किया, हकीम नुत्फे का लोथड़ा बनाया, लोथड़े की गोटी बनाई, गोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर सुनने की ताकत अता फरमाई, फिर देखने की ताकत अता फरमाई। और अहसनुल खालिकीन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कैसे आसान तरीके से हमने तुम्हारी तखलीक की, अलग अलग स्टेजेस से पार किया। क्या तुमने गौर किया है कभी? एक स्टेज इंसान का ऐसा आता है, जेल में था एक क्लास जैसा मेडिकल स्टूडेंट्स में, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बेस्ड ऑन प्लानिंग आया एंड अहादीस। बच्चे की पैदाइश मां के पेट के अंदर कुरान और अहादीस की रोशनी में। मेडिकल डॉक्टर्स से मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे पूछने लगे, हमें मेडिकल किताबों पढ़ को ही मगर कुरान पढ़ को नहीं। वो भी ट्रेजेडी गया। अब डॉक्टर जो बोल रहे पूरा 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की पैदाइश डिफरेंट स्टेजेस। डॉक्टर कीथ मोरे किताब लिखा है, किताब का नाम है द डेवलपिंग ह्यूमन। आज मेडिकल थर्ड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर द डेवलपिंग ह्यूमन डॉक्टर कीथ मोरे की किताब पढ़ाया जा रहा है मेडिकल किताब, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर कीथ मोरे कहता है कि एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस व्हिच हैज डेवलप्ड रिसेंटली। बच्चे की पैदाइश की जो साइंस है वो 30, 40, 50 साल में ज्यादा रिसर्च हो गया है, जबकि पूरी एम्ब्रियोलॉजी कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले है ना। को डॉक्टर कीथ मोरे बोल रहा है, वो कहता है ये एक माइन्यूट स्टेज भी कुरान पाक के अंदर जो बच्चे की पैदाइश के अंदर है। डॉक्टर कीथ मोरे कहता है कि क्या अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट था क्या, how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told all these things। पूरे मेडिकल डॉक्टर बैठ कर ही किंग यूनिवर्सिटी जिद्दा में मेडिकल साइंस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कीथ मोरे कहता है, आई एम नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन इन एक्सेप्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रियल मैसेंजर एंड प्रॉफिट ऑफ गॉड। मुझे इस बात के मानने में कोई एतराज नहीं कि वाकईतन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। वो कहता है क्या चीज थी देखने के वास्ते अंदर। एक स्टेज ऐसा आता है मुद्गा। डॉक्टर कीथ मोरे मेडिकल स्टूडेंट्स को समझा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मुद्गा। मुद्गा का माने क्या, मुद्गा के माने एक स्टेज में हमें ऐसा है च्यूइंग गम को लेता हूं, मेडिकल स्टूडेंट को समझाता, च्यूइंग गम चापता, चबाने के बाद जो है ना च्यूइंग गम निकालता, उसके ऊपर टीथ मार करती, सेम वो पोजीशन में हमें मां के पेट में रखती। च्यूइंग गम के ऊपर टीथ मार करती ना, वो पोजीशन में हमें रखती जिसे कुरान ने मुद्गा कहा। मुद्गा के माने चबाया हुआ। मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं वो इज्जत नफूस ज़ुर्रियत के बारे में मैं बता रहा हूँ।
अल्लाह ताला कैसे स्टेजेस से लेकर जो है ना तुमने इंसान को पैदा करे। आज क्या तुम्हारा इतना नहीं कि जो आसमान और जमीनों को बनाने वाला क्या खबर से तुम्हें उठा नहीं सकता क्या? एक मिसाल इस तरह दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम इस बारिश को नहीं देखते? तुम्हारा तसव्वुर ये होता है कि ये मुर्दा जमीन है, बंजर जमीन है। इसी बंजर जमीन के अंदर जब बारिश आता है तो लहलहाते हैं, फूल जो है ना, फल फूल जो है ना उगते हैं। मुर्दा जमीन के अंदर हम कैसे जान पकड़ते हैं बारिश आने के बाद? क्या तुमने कभी गौर नहीं किया? वो इज्जत नुफूस ज़ुविजत। मैं एक मेडिकल साइंस का रिसर्च आपके सामने रखूंगा। एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के नाते मैं एग्रीकल्चर साइंस का भी रिसर्च करूंगा, दो भी रखूंगा। आप पूरे मेडिकल डॉक्टर से भी पूछिए दावणगेरे के, अगर कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहाँ दावणगेरे में है तो पूछे, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं जो बता रहा हूँ क्या हो। दावणगेरे में भी मैं 2 साल काम किया। नियरली यहाँ पर गेरेबिल्टी के पास ये है कत्तलगेरे फार्म है, एग्रीकल्चर रिसर्च कत्तलगेरे, गेरे के अंतर दूर से उधर जाता हो। कौन काम कर रही क्या? हाँ, साइड टेस्टिंग लैबोरेटरी है, अरे मट्टी टेस्ट करते हैं। मट्टी टेस्ट करके रैयत आपको जो है ना वो ये चार्ट बना के देती है, कौन से तुम्हारे क्रॉप्स हैं, कौन सी फसल ले रही तुम्हें, कौन सी फसल को क्या क्या डालना तुम्हें गोबरी। वो जैसा ब्लड टेस्ट हमारा करते हैं ऐसा मट्टी का टेस्ट होता है। उसके बड़े बड़े लैब से हजारों लाखों करोड़ों के रुपए खाली वो मट्टी टेस्ट करने के पूरे कर्नाटक से पूरे इंडिया में उसका एक बजट होता मट्टी टेस्ट करने का, रैयत के वास्ते मट्टी टेस्ट करने का। वो मट्टी जो टेस्ट करती ना उसमें 16 से 18 एलिमेंट्स होती, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सभी है। वो जो अब मैं एमएससी एग्रीकल्चर में जब करता था तो मेरा मेजर सब्जेक्ट था सीड फिजियोलॉजी, यानी बीज के अंदर क्या क्या रिएक्शन होते, जब बीज डालते तो बीज के अंदर क्या क्या रिएक्शन होते। तो मट्टी के पूरे कंटेंट जो है ना, कैल्शियम, आयरन, ये सभी जो है ना मिट्टी के जरिए से, मिट्टी जो है बीज के जरिए से ऊपर पेड़ में जाती है और पेड़ के जरिए से जो भी हमें फ्रूट्स खा रही, वेजिटेबल्स जो भी खा रही वो आके मिट्टी ही खा रही। और मिसाल के तौर पर रागी के अंदर कैल्शियम और आयरन है, डॉक्टर बोलते तुम्हारे जिस्म के अंदर जो है कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, क्यों बोलते रागी में कैल्शियम और आयरन है। तो ऐसा एक बैलेंस डाइट हमारा जो मिट्टी के 16 एलिमेंट जो है ना वो पूरा तुम्हें, चाहे रागी हो, चावल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब मिला के बैलेंस डाइट के अंदर पूरा 16-17 एलिमेंट भी हमारे जिस्म को जाती है। यानी जो भी हम खा रहे हैं गोया कि मिट्टी ही खा रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी के अंदर जो कंटेंट्स है वो बीज के जरिए से पेड़ को जाती हैं, पौधों को जाती हैं, झाड़ को जाने के बाद झाड़ से जो भी जो चीज़ें हमें खा रही वो है कि मिट्टी ही खा रहे हैं, मिट्टी के कंटेंट्स आ रहे हैं। इसको कुरान ने क्या बयान किया सूरह मोमिनून आयत नंबर 12, 13, 14 के अंदर, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर हकीर नुत्फे में तब्दील किया, हकीर नुत्फे का लोथड़ा बनाया, लोथड़े की बोटी बनाई, बोटी की हड्डियां बनाई, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। हड्डियां आती हैं, हड्डियां 205 हैं, छोटे बड़े हड्डियां कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर 205 है। ये सभी जानना पड़ता है हमें जिस्म के अंदर क्या क्या ये है तो 205 कौन से। अब ये जो मट्टी के कंटेंट जो है ना पूरा सप्लाई होती है बॉडी को, हमारे जो भी हमें खा रही सप्लाई हो रही, और वो सप्लाई होने के नतीजे में जो हकीर नुत्फा जो निकलता है, पूरी मेडिकल साइंस ये कह रही है कि डॉक्टर जो है ना हकीर नुत्फा जो निकलता है इंसान से जो खारिज होता है उसे लैब टेस्ट करके ही सेम जबते मट्टी के कंटेंट जबते ही मतलब तुम्हारे जिस्म में आती, तो सेम जिस्म जो है ना उसके अंदर जो है ना हकीर नुत्फा जो खारिज होता है सेम मिट्टी के कंटेंट जो है ना हकीर नुत्फे में। तो कुरान क्या है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया फिर हकीर नुत्फे में तब्दील किया। तो पूरे मट्टी के कंटेंट्स कहाँ है, वो हकीर नुत्फे में है जो टपकता है। वो हकीर नुत्फे से गोया मिट्टी जो है ना मिट्टी के कंटेंट्स हमें खा रही, गोया कि मिट्टी ही खा रही, मिट्टी के कंटेंट से हकीर नुत्फा बन रहा है। वो हकीर नुत्फा जो है ना नस्ल बाद नस्ल जो ट्रांसफर हो रहा है हकीर नुत्फे की शक्ल में, गोया कि मिट्टी ही ट्रांसफर हो रही है, गोया कि मिट्टी ही ट्रांसफर हो रही है। हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से हकीर नुत्फे में तब्दील किया, हकीर नुत्फे का लोथड़ा बनाया। तो अलग अलग स्टेजेस में अल्लाह ताला पाक है।
بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانوں کو جسموں سے جوڑ کر جو ہے نا اٹھا کر دیں گے قیامت میں. تو یہ چیز جو ہے نا بہت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب تک میرا عنوان یہ عنوان جو ہے نا قیامت کا عنوان کمپلیٹ نہیں ہوا، جبکہ مور دین 100 عنوانات الحمدللہ میرے پاس ہیں، کتابیں بھی لکھ رہا ہوں میں، اور یوٹیوب اور فیس بک کے اندر 20 کے سے زیادہ ایپیسوڈز آ گئے ہیں. انشاءاللہ میں کسی کو بھیج دوں گا. میں والبلاغ چینل کی طرف سے یہ الگ الگ ایپیسوڈ بنا گئے 15 20 منٹ کے، آلریڈی مور دین 25 ہو گئے. یہ گروپس میں بھیج دوں، آپ گروپس کے اندر بھی شیئر کر لیتا. یہ بتا اب وہ پورے عنوانات کو میں الحمدللہ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آج کی اس نشست میں ایک عنوان ایک ٹاپک کے اوپر ہی بات کرنے نہیں آپ کو، تو کیونکہ وہاں پر بھی بیان ہوا تھا، کیونکہ اسٹرائک بھی زیادہ ہوتا نا. تو آخر میں چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن پاک میں صرف قیامت کا ہی نہیں، پورا واٹر سائیکل ہے. واٹر سائیکل کیا؟ وہ سائنس کو ہائیڈرولوجی کہتے ہیں. ہائیڈرولوجی کیا؟ سائنس جب سورج کی شعاعیں سمندروں میں پڑتی ہیں تو سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بادل میں ٹکراؤ ہونے کے بعد لائٹنگ ہوتی ہے، لائٹنگ کرنے کے بعد بارش برستا ہے، اور بارش زمین کے انڈر گراؤنڈ پردوں کے اندر جذب ہوتا ہے. یہ پوری سائنس کو کیا بولتے ہیں؟ ہائیڈرولوجی کہتے ہیں. ہائیڈرو مینس واٹر. واٹر کہاں سے بنتا، کیسا بنتا، اس کی کیا یہ ہے؟ ابھی جو ہمارے آیت جو ہم نے سلیکٹ کی تھی وہ آیت کیا ہے؟ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اس کا زیادہ کا بھی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا آیت کا. بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ اسٹڈی سرکل کو دوسری آیت میں سلیکٹ کر لیں گے. بیچ میں ہم بریک دے کے پھر اسٹڈی سرکل ہے نا دوسری آیتوں کو سلیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واٹر سائیکل جو ہے نا پورا جو ہے نا سورج کی شعاعیں سمندروں میں کیسے پڑتی، سمندر کا پانی آپ کو کیسے اڑتا، بادل کیسے بنتے. سورہ نور آیت نمبر 43 میں ہاؤ کیومولس لیئر آف کلاؤڈز از فارمڈ، کیومولس لیئر آف کلاؤڈز کیسے بنتا. بادل کے اندر ایک دم جب کوئی جگہ کھڑ کر رہتی نا بادل، اسے کیومولس لیئر آف کلاؤڈز بولتے ہیں. وہ کیسے بنتا وہ بھی قرآن میں ہے. پھر اسٹیٹک لیئر آف کلاؤڈز بولے تو یہ بادلوں کو ہوا کے موومنٹ سے بادل موو ہوتے رہتے ہیں، اسے اسٹیٹک لیئر آف کلاؤڈز بولتے ہیں. ہائیڈرولوجی کے اندر سائنٹسٹ وہ کیسے بنتی، ایک دم جم کو بارش آتا کر کے بنتی نا، ایک جگہ کھڑے ہو جاتے بادل، جاتے جاتے ایک دم ہوا سے بھی منہ نہیں ہوتے، اسے کیومولس لیئر آف کلاؤڈز بولتے ہیں. یہ پورا خاکہ ہائیڈرولوجی کا قرآن پاک کے اندر سورہ نور آیت نمبر 40 بولتے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 40 پاٹ، سورہ آراف آیت نمبر 57، سورہ رعد آیت نمبر 17، سورہ فرقان آیت نمبر 40 پاٹ 40 کو 9، سورہ فاطر آیت نمبر 9، سورہ یاسین آیت نمبر 34، سورہ واقعہ آیت نمبر 60 پاٹ 60 کو 9، سورہ خاف آیت نمبر 8 اور 9، سورہ یاسین آیت نمبر 34، سورہ ملک آیت نمبر 30، سورہ زمر آیت نمبر 18، سورہ طارق آیت نمبر 11، سورہ مومنون آیت نمبر 21، سورہ طارق آیت نمبر 11، سورہ النحل آیت نمبر 65، سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ زخرف آیت نمبر 9 10 11. قرآن has described the water cycle in great detail. صرف واٹر سائیکل کو میں 200 پیجز کی نوٹ کمپلیٹ کر کروں اس کے ایکسپلینیشن. رات دن میرے کو جنون سوال ہو جانا قرآن سمجھنے کے واسطے، نہیں تو نہیں ہوتا. وہ جنون آدمی اپنا انہیں دیوانہ ہو کر چلے گیا ہے. جب تک یہ ٹیچر ہمارے میں تعلیم نہیں ہوتی ہمیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. انہوں سمجھ نہیں، انہوں سمجھ کے اسلام قبول کر رہے. ہمیں خالی ڈلڈل کو پڑھنے لگنی قرآن پاک. ڈلڈل کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، مجھے میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. قرآن پاک کو بغیر سمجھے بوجھے بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر خناق کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. اے نادان تو اچھے باغ کو گیا، ہر ٹائپ کے فلاورز کو تو توڑ سکتا تھا، لے سکتا تھا، مگر تیری نادانی، تیری کمزوری خالی تو کلیاں توڑ لیتا تھا. کلیاں بس ہمنا الگ الگ ٹائپس کے فلاورز نہیں چاہیے. اللہ میرے پاس یہی بات کہی، تو ہی نادا چند کلیوں پر خناق کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. اس سے کڑیائے تو کوڑی بھی نہیں دام ترا، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خال بھی تعلیم کے قرآن ہو کر
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خالی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاف. قرآن میں ہو وہ نازن ہے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھتے تو آنسو اتنا ٹپکتے کہ پیجز بھیگ جاتے تھے. ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں؟ کتنے سالوں سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا کبھی میری آنکھ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا قرآن پاک کے اوپر میرا ایک آنکھ کا قطرہ ٹپکا ہے؟ کیوں یہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے؟ کیوں نہیں ٹپکا؟ خود قرآن کہتا ہے اہل مومنین کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا تین کیفیتوں میں یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی ہے؟ اگر پیدا ہوئی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ یہ لے کر اٹھنا ہے. قرآن پاک سنانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک مردوں کی کتاب نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 23 ایئرس کے اندر جو ریولیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، قیامت کی صبح تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال میں بھی اتنا بڑا ریولیوشن انقلاب نہیں آ سکتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں لائے. یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے، جگانے والی کتاب ہے، یہ سنانے والی کتاب نہیں ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب دی تھی توریت بنی اسرائیل کو مگر انہوں نے تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا تو ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے جن گدھوں پر کتابیں لا دی گئی ہے. گدھے کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے. ہمیں یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ بنی اسرائیل کو بولیا تو ہم نہ نہیں، ہم نہ بھی بولیا. اگر تم اس سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. میں بلال فلپس کو لے کر آؤں گا، کمر اللہ سوریا کو لے کر آؤں گا، یہ سائنٹسٹ جو اسلام قبول کر رہی جو میں تو ان کو لے آؤں گا. میں مسلمانوں کا محتاج نہیں ہوں. تمہیں کرے تو یہ میرے برام کا کام، میں تو نہیں کر کو نہیں. تمہاری جگہ میں دوسروں کو لے آؤں گا. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری جگہ ایکسچینج کے طور پر میں دوسروں کو لے آؤں گا اور تم جیسے نہ ہوں گے، تمہارے جیسے سست رفتار نہیں ہوں گے، وہ کام کریں گے، جنون کے حد تک جا کر وہ کام کریں گے. مگر تم نے چھوڑ دیا قرآن پاک. اسی تاخرات میں مولانا ابوالکلام آزاد کو بلایا گیا. تاخرات میں ایجوکیشن منسٹر، ہزاروں کا مجمع مولانا کے سامنے. مولانا نے مجمع سے پوچھا مسلمان تاخرات مناتے کیوں؟ الحمدللہ آج آخری تاخرات ہے. کیوں مناتے ہیں؟ آپ سب آگے کئی کو بیٹھی ہیں. مولانا پوچھ رہی سو میں نہیں، میں آپ کو نہیں پوچھ رہا. مولانا نے پوچھا کیوں مناتے ہو تاخرات؟ ہزاروں کا مجمع خاموش. مولانا نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر دیا جڑکت ہے، ریٹنگ ارینجمنٹ، بڑا پنڈال، یہاں بھی ہے کسی سہیلی کا. مولانا بھی دیکھے دیرا سے بھی جڑکت ہے، سب دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسلمان اچھے پیمانے پر اہتمام کرتے ہی تاخرات ہیں. پھر مولانا نے کہا کیوں مناتے ہیں؟ پھر مولانا نے ہی جواب دیا مسلمان تاخرات اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے اس راز میں اتارا. اب مثال کے طور پر آج چاشبہ ہے، کیا ہے آج چاشبہ؟ جمعرات کبھی انٹر میں کریں گا، جمعرات کو انٹر ہوگی، ٹھیک ہے. چاشبہ جمعرات رکھ لیجیے. پھر نیکسٹ چاشبہ کی رات ہوئی، یہ رات کو کمپیئر کرنے بتائیے کہ وہ ٹائمنگ سیم نہ، یہ رات کی ٹائمنگ ہوئی وہ رات کی ابھی ویک کے بعد کی ٹائمنگ سیم نہ. مولانا نے یہی بات کی، یہ لنک جو ہے نا، یہ رات کا لنک جو ہے نا قرآن سے لگنے میں ہاں آپ کو بیٹھ ہوئی سوال. عید ہونے کے بعد تہوار میں تو کہاں سے آتے ہیں؟
تو مولانا نے یہی بات کی مجمع سے، تم تاخرات اس لیے مناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے اس تاخرات میں اتارا. جب بولنے کے بعد مولانا کے الفاظ، ان کی اردو اچھی تھی. مولانا نے کہا مسلمانوں کی غفلت حیرت انگیز، مسلمانوں کی لاپرواہی ماتم کدا. پہلے دیوان نے کو کیا بولے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا منا رہی نا تمہیں سبھی بولے. پہلے وہاں پہ ایک دم سیریس ہوئی مولانا. انہوں نے کہا مسلمانوں کی غفلت حیرت انگیز، مسلمانوں کی لاپرواہی ماتم کدا. مسلمان تاخرات تو مناتے ہی، مگر جو مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے اس تاخرات میں اتارا اس کو اٹھا کے تاخ میں رکھ دیا. اگر مسلمان قرآن پاک سے وابستگی قائم کیے ہوتے، اگر مسلمان قرآن پاک سے رشتہ جوڑے ہوتے تو مسلمانوں کی ہر رات لیلۃ القدر ہو جاتی، مسلمانوں کی ہر رات تاخرات ہو جاتی. مسلمانوں کی ہماری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا مولانا ابوالکلام آزاد. یہ ہے اصل چیز. ہمیں کیا تو رمضان ہوتے ہی رمضان کو ٹاٹا مارا. رمضان کیا کہ ہمیں کیا کہ قرآن کو بھی ٹچ کرنے کا نہیں ہے. رمضان کے بعد یہ کیفیت ہوئی تو رمضان کہتے کہ رمضان آدھ دن چلے جاتے ہیں، آدھ دن چلے جاتے ہیں، مگر چینجز نظر نہیں آیا. ہمارے اندر چینجز بنا تو ہر لوگوں کو ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں ہر دن جو ہے نا اتنا کئی مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے کے واسطے میں استعمال رمضان کے بعد بھی. تو یہ ہے اصل حق ادا کرنے کا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک روز محشر میں تمہاری سفارش کرے گا، اور یہی سفارش کرنے والا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. اگر میں قرآن پاک کا کچھ حد تک حق ادا کر رہا ہوں تو قرآن پاک میں ریکمینڈ کرتا ہوں مجھے روز محشر میں، اور میرے حق میں گواہی دیتا. اور یہاں کے لائن وٹنس دیتی نا وہ ہمیں وٹنس قرآن کا وٹنس انہیں پڑھ کو ہے مجھے انہیں کچھ تو کر کو ہے، منیمم ریکوائرمنٹ تو کر کو ہے، پاسنگ مارکس تو لے کو ہے، کو گواہی دیا تو بس قرآن پاک. اگر تصور کیجئے داخلت میں بیٹھ کر روز محشر میں اگر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے تو ہمیں سب کیا کرنا ہو؟ بچ کر نکلنے ہوتا کہ اور ایک لائر کو اپوائنٹ کرے جائے، بڑے لائر سپریم کورٹ کے ہو سکتا. دنیا کی حد تک یہ سب چیزیں چل رہی، وہ لائر یہ لائر وٹنس چل رہی. قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر میں تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا قرآن پاک. تو اس حدیث کو اگر صحیح معنی میں اگر سمجھیں تو کچھ حد تک منیمم ریکوائرمنٹ تو ہمیں ادا کرنا ہے قرآن پاک کے طور. تو اس داخلہ میں لے کر ہم اٹھے کہ قرآن کیسی معتبر کتاب، ہائیڈرالوجی ہے اس کے اندر، دوسرے ورڈز کے تعلق سے سب چیزیں ہیں، تو تفسیر پہ جانے کا موقع نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تاخرات میں ڈیسائڈ کریں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں. قرآن پاک کی عظمت ایسی ہے کہ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس پہاڑ کے اوپر اس قرآن پاک کو اگر رکھ دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان کو غور و فکر کر، تدبر کر، تو تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے. قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کے 5 حقوق کو ادا کرنا ہے. مسلمان کے اوپر جو ہے نا 5 حقوق کو ہم ادا کرنا ہے. نمبر 1 قرآن پاک پر ایمان لانا، جس طریقے سے اس پر ایمان لانے کا حق ہے. نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. نمبر 3 قرآن پاک کو سمجھنا، جس طریقے سے اس سے سمجھنے کا حق ہے. نمبر 4 قرآن پاک پر عمل کرنا، جس طریقے سے اس پر عمل کرنے کا حق ہے. نمبر 5 قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا، جس طرح سے پہنچانے کا حق ہے. یہ تو لاسٹ پوائنٹ میں بولا نا، یہ ہم میں سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. قرآن پاک جو مجھے معلوم ہوا وہ دوسروں تک پہنچانے کے کام کتنے لوگ کر رہے ہیں، جبکہ ہر امتی کی، ہر مسلمان کلمہ والوں کی ذمہ داری ہے جو کچھ اسے معلوم ہے دوسروں تک پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں پہنچاؤ.
आलिम बनने की क्या भी जरूरत नहीं। मैं आज तक मदरसे की सूरत भी देखा कि मदरसे में मैं पढ़ा भी नहीं, ओपनली बात कर रहा हूँ। कौन सी भी एक सर्टिफिकेट भी नहीं है मुझे मदरसे की। आप समझ ले रहे फला फला मदरसे पर, कौन से मदरसे को क्या करूँ। कोशिश से हो सकता, हर चीज भी जो है ना कोशिश से इंसान हो सकती। और आज का दौर जो है ना, हमें जाको पढ़ने के लिए किस टाइम पकड़ कर पढ़ते थे, आज जो है ना रेडीमेड जो है ना, आप जो है ना इंटरनेट के ऊपर देकर पूरा हर चीज भी मिल जाएगी। इस चीज को सही इस्तेमाल, आज ये जो चीज जो है ना मोबाइल का है ना गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे सही अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहिसाब नॉलेज के बहुत नॉलेज बहुत इल्म हासिल होगा। आज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का दौर है, जिसकी जितनी नॉलेज है उसके कसर जो है ना उन्हें इम्प्रूव हो जाता। तो आज जरूरत इस बात की, बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमानों से पहले वो साइंटिस्ट जो है ना उनकी कॉपी करके इन्होंने नोट किया कर लेते पूरा ले जाकर पूरा मुसलमानों का ले जाकर आज उन्होंने उनके नामा से में किताबों के अंदर उनके नामा मुसलमानों का नहीं बताया। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान पाक में सही मायने में समझें और कुरान पाक का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने का काम। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के अंदर जो आखिरी जो कलमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं तुम सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं उन तक ये पैगाम कुरान पाक का पैगाम पहुँचाना है। ये सुनने के बाद केरला बाढ़ तक क्या गए साहबा, क्या फ्लाइट में थे क्या उन्होंने, कैसे कैसे आंधियां तूफान में आया निका समंदरी रास्ते से। हम ना उतना मुश्किल नहीं है, ठंडे ठंडे काम कर रहे हैं। वो साहबा की तकलीफा काम जो करे इसका तस्वर भी आज नहीं कर सकते। आप तमाम से मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि जितना आपको मालूम है दूसरों तक पहुँचाएं। ये ड्यूटी है, हर मुसलमान की ड्यूटी है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद तो खैर उम्मत रुखरजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अब कोई नबी दुनिया के अंदर आने वाले नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि तुम सारे इंसानों के ऊपर गवाह बना, सारे इंसानों के ऊपर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनके ऊपर गवाह बनने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी लेकर अगर काम करें तो ये हालात नहीं आ सकते जो हालात आज हिंदुस्तान के अंदर है ग्लोबल लेवल में। तो हमने कुरान को कसे पुश डाल दिया और कुरान का पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा, इसके नतीजे में जो है ना अल्लाह ताला के अज़ाबात आ गए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक का पैगाम सही मायने में समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु ज़ुल्मन कसीरन व ला अग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ाग़फिर लि अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।